السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا پروگرام آپ کے لیے عید کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہے۔ رمضان کے بعد لوگ روزے کی جو سعادت ہے اور پھر تراویح کی سعادت، یہ اس کے بعد ایک اتنی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ عید کا جو موقع ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا کے اندر، ہمارے ہاں ہمارا جو کلچر ہے اس کے مطابق جو لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یقینی طور پہ اس سے کافی زیادہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں ڈے ٹو ڈے، اس سے لوگ دور جا کے اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم بھی تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کے بات کریں گے، اور میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ میڈیا کی، ٹیلی ویژن کی، نیوز کی پرسنالٹیز ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں انیکا نثار صاحبہ، اینکر پرسن ہیں جی ٹی وی کی، پروگرام اپنا کرتی ہیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں۔ جناب جمیل فاروقی صاحب ہیں، بولڈ ٹی وی سے آپ منسلک ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں، اپنا پروگرام کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی فاروقی صاحب، آپ تشریف لائے۔ بطول راجپوت صاحبہ ہیں، شی از ڈوئنگ ہر شو ایٹ سچ ٹی وی اور سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت شکریہ آپ کا بھی بطول، آپ تشریف لائی ہیں۔ بات کا آغاز آپ ہی سے کر دیتے ہیں، یہ بتائیں کہ عید کا دن کیسے شروع کرتی ہیں آپ؟ اچھا، بہت فرق آ جاتا ہے بچوں کے بعد، تو وہ پھر عید بچوں کی ہوتی ہے۔ جیسے میری بیٹی ہے تو اس کی اور طرح کی تیاری ہے، وہ 4 سال کی ہے، اور میرا بیٹا ہے وہ 5 سال کے، تو اس کی اور طرح کی تیاری ہے۔ تو بچوں نے، میرے بیٹے نے مسجد جانا ہوتا ہے اپنے بابا کے ساتھ، اور بیٹی نے تیار ہونا ہوتا ہے، اور ان دا مین وائل اگر تیار ہونے کا موقع مل جائے تو ہم بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا شاید آپ ابھی کہیں گی کہ وہ تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور میں سو رہی ہوتی ہوں۔ نہیں، آپ کو پتہ ہے میرے ان لاز میں اگر آپ 7:30 بجے نیچے نہیں آیا ہے، مطلب لابی میں نہیں آیا ہے، تو عید ختم ہے۔ اور بھائی صاحب ہمارے جو ہے وہ شیر خورمہ آپ کے لیے تیار تو نہیں کرتے؟ کر کے سوتے ہیں رات کو؟ نہیں، آئی تھنک از ہمبل انف، روٹین میں تو کر دیتے ہیں، لیکن عید والے دن ہم لوگ خود ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو صبح اٹھ کے مطلب ڈو یو لائک ٹو گو ٹو دا کچن اور؟ ناٹ ایٹ آل۔ اچھا، ناٹ کچن، اینی تھنگ بٹ ناٹ کچن، ناٹ کچن بٹ اینی تھنگ۔ اصل میں ہم لوگ عید اب سسرال میں کرتے ہیں، تو وہ اٹس اے بگر آئی فیملی، تو جو میری ساس ہیں وہ کچن ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور جو سارا اسٹاف ہے شی از ویل اکوپڈ، تو انہی کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو وہ ہم لوگ ان کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بس چاہتی ہیں کہ آپ اچھا سا تیار ہو کے 7:30 بجے سب کے سامنے آ جائیں، اور وہ زیادہ مشکل کام ہے، ہوتا ہے ظاہر ہے۔ مطلب مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں 8 ساڑھے 8 بجے ہم لوگ تیار ہو، تو آنٹی نے کہا اب آنے کا کیا فائدہ، عید تو ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، تو مجھے لگتا ہے یہ والا چیلنج اب عید کے بعد زیادہ ہوتا ہے، لیکن بچوں کی وجہ سے اٹس اے لاٹ آف فن، اور بچوں کی عید ہوتی ہے۔ بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری، آپ ابھی کوئی اتنا مطلب آپ اپنے آپ کو کیوں بار بار بچوں کو کہہ رہی ہیں؟ اچھا جی جمیل فاروقی صاحب، ہاؤ یو اسٹارٹ یور ڈے؟ بات بالکل بطول کی ٹھیک ہے، عید واقعتاً بچوں کی ہی ہوتی ہے، اور وہ شاید وہ دن کبھی واپس آ سکیں جب اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ آپ انجوائے۔ ہاں، تو عیدی اب وہ دینے والا ہاتھ ہو گیا نا، تو اب تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ انکل نہیں بھی ہیں تو بچے نے آپ کو انکل بولنا ہے، چاچو بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس فیز میں اب آپ آ چکے ہوتے ہیں، تو رسپانسبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں، ہیپینیسز کا لیول جس نے انجوائے کرنا ہوتا ہے تو اس کے ڈیلی بیسس پہ اس کے لیے عید ہے۔ اگر وہ ٹھیک سے اپنی روٹین کو مینٹین کرتا ہے، اپنی لائف کو چل کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو عید جو ہے وہ ایک رمضان کا ایک خاص مہینہ تو ہے، اس کے بعد آپ کو مل رہی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ایک ریلیجیس اوبلیگیشن ہے، بٹ ڈیلی روٹین میں آپ کر رہے ہوتے ہیں، وہی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اسی طرح، میں تو اس کو بڑا کیجول لیتا ہوں۔ تو ہاؤ یو اسٹارٹ یور ڈے؟ مطلب نماز پڑھنے کے بعد I have seen سچی بتاؤں کچھ لوگ جو ہے نا وہ سو جاتے ہیں، سچی بتاؤں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی نیند پوری کرنی ہے آج کے دن۔ سچی بتاؤں بالکل ٹھیک کرتے ہیں، میں انہی میں سے ہوں۔ اچھا، زیادہ سے زیادہ عید نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد سو جانا ہے، اور پھر اٹھنا ہے شام کو، کیونکہ روٹین لائف میں آپ کو ٹرانسمیشنز میں بیٹھنا ہوتا ہے، انالیسس کرنا ہے، پولیٹیکل سچویشن پاکستان کی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں تو اس رمضان میں دس واز دا مچ ہیپننگ رمضان، آپ پہلے رمضان سے ہی نہ آپ تراویح بھی پتہ نہیں پتاری، نہ تراویح، نہ کسی ڈنر پہ آپ جا سکے ہیں۔ پہلے 15 دن تو اتنے ہیپننگ تھے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تک تھنگز، اور آپ دیکھ لیں کہ وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی ہیں انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر۔ آپ کا جوڑا ماشاءاللہ بڑا زبردست ہے، آئی مسٹ اپریشیٹ۔ ایبسلیوٹلی یس سر۔ میں نے کہا آپ نے نو، ایبسلیوٹلی ناٹ نہ کہہ دیں۔ تھینک یو جی انیکا، آپ اتنی سیریس کیوں ہو رہی ہیں؟ میں بالکل بھی سیریس نہیں ہوں، اصل میں وہی رمضان کی
पूरी थकावट के बाद और अक्सर मर्द हजरात तो बस बैठे होते हैं, तो हम लोगों ने तो बहुत सारे काम करने होते हैं. We have लेकिन अब double the आपने job. अब मैं क्या कह सकता हूँ. We have double दोनों को इन्होंने रगड़ दिया है भाई. We have double the job. हम लोग बाहर की और घर की दोनों बिल्कुल जिम्मेदारियां सही है, बिल्कुल संभाल रहे सही होते हैं. पर्सनली आई लव कुकिंग, तो मेरी तो ईद शुरुआत शीर खोरमा बनाने से लेकर खाने तक और बाकी सारी बाय द वे चीजें से इस होती हैं. बड़े बेमुरवत हैं हमारे दोस्त जो इस्लामाबाद में इतनी अच्छी कुकिंग भी कर लेते हैं. कभी किसी ने नहीं कहा यार आके हमारे साथ खाना खा लो. आप नान और सलाद लाने वाले बने, कुकिंग हो जाएगी. ये वो वाले नहीं होते जो वन डिश पार्टी के अंदर इनके लिए नान और डब्बा सलाद. भेजा जा सकता है. ये बात ठीक तो है. ये ईद का तो मौका किसी दिन फिर basically- अटैक हो जाए बतूल नान और सलाद मैं के तो साथ. बतूल को तो मैं पहले ही बता पता है, चुकी जब हूँ, मैंने both are किसी को welcome to- इनवाइट करना होता है, okay, जब मैंने okay, किसी को okay. इनवाइट करना होता है तो मैं से कहती हूँ यार मेरे ससुराल में जरूर आओ. they very good. ससुराल का सुन के वैसे ही सारे नहीं आते होंगे नहीं ना. ना, वो बहुत अच्छे आप मेजबान दोनों हैं. मेरे घर को अपना मेका समझ सकते हैं. अपने Most घर welcome. बुलाती हूँ, अपने Most ससुराल welcome. बुलाती शेफ हूँ, बड़ा अच्छा बहुत रखा अच्छे हुआ है. मेजबान. यानी खर्चा ये करें, आप फैसिलिटी देंगे. खर्चा मैं करूँ. खर्चा करने के मामले में सर चलो मतलब हम बोल लोगों टीवी ने में एक हूँ. दूसरे को इनवाइट कर लिया सबने. बोल टीवी में हूँ. अच्छे अच्छे हैंडसम अच्छा, पैकेट ये बाकी के माशाल्लाह. चैनल्स को आप underestimate. नहीं नहीं बाकी चैनल भी अच्छे हैं. ये बात नहीं है. तो हाउ यू स्टार्ट योर डे? बेसिकली आई स्टार्ट माई डे सुबह सुबह उठ के. मेरी बेटी है, मुझे खुद तैयार होने का बहुत कोई शौक नहीं है. कपड़े ईद पे बन जाए नहीं बने जब टाइम होता खरीद लिए, नहीं हुए तो नहीं खरीदे, मलंग टाइम. अच्छा शी इज लेकिन- ऑलवेज वेल ड्रेस्ड बाय द वे. माशाल्लाह. जब भी इनसे जज़ाकल्लाह. ए चीफ साहब से मीटिंग थी, 2-3 दफा हमारी मुलाकात हुई है, कभी बात नहीं हुई, लेकिन जब भी इनको देखा है हमेशा वेल ड्रेस्ड होती है. हाँ, माशाल्लाह. जज़ाकल्लाह. मुझे अपनी बेटी को तैयार करने का बहुत ज़्यादा शौक है. शी इज़ सच अ क्यूटी पाई. मतलब मेरी तो लाइफ उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है. तो उसको सुबह उठ के तैयार करना, और लड़कियों की तैयारी जो होती है ना, उसके अंदर सारी माओ की और बाप की जान होती है. और ये तो हमारी बड़ी दुआओं के बाद हमारी माशाल्लाह इस सेंस में बेटी हुई कि मेरे हस्बैंड 4 भाई हैं, और बाय द टाइम मेरी बेटी पैदा हुई थी तो ससुराल में कोई लड़की नहीं थी. ठीक. तो ये हमारी बहुत स्पेशल बड़ी चहीती, मेरे लाडली बच्ची थी. बहुत लाडली बच्ची है. और मैं अपने घर में बहुत लाडली हूँ, तो मेरी बेटी अल्टीमेटली बहुत ज्यादा लाडली है मेरे घर पे भी. ईद वाले दिन शीर खुरमा वगैरह आप तैयार करती हैं? आई एम अ चीता एट कुकिंग ना. अच्छा, मतलब हलीम है, चिकन मखनी है, बिरयानी है, सारी और भी चीजें. साहब फिर प्लान जो है. सर हल्ला चापो हल्ला मारने हल्ला हल्ला बोलते हैं किसी दिन. मैं अच्छा बाय द वे उसमें- ये भी क्लिक रह चुकी हैं. अच्छा. हाँ, डॉन में हम साथ थे बैक इन 2012 2011 2011 और 12 में भी something. कराची में ही. और कराचीआइट अगर आप नहीं भी हैं और कराची में रह चुके हैं, मैं तो खैर कराचीआइट ही हूँ, तो वहाँ पे रहने वाला वो बहुत अच्छा टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग I होती know है. because I also remained there for 1 year. And I was with business वैरायटी class. ऑफ फूड. हाँ. बिल्कुल बिल्कुल. बिजनेस Back क्लास in तो हर 2006. किसी की सब business class. हर मैं किसी तो की start किया एकेडमी था, रही channel है. launch मैं भी किया था. बिजनेस क्लास में ही था भाई. मैं Business वो शाहजेब class का यही तो बता रहा हूँ. शाहजेब उधर ही था. शाहजेब मेरे बाद में आया. राना मुबशिर थे, शाहजेब साहब थे, यहाँ बहुत बतूल पहले थी. थे. मैं तो हम लोग स्टार्ट उसके किया बाद था है. हमने. उसके बाद We launched the channel. बिजनेस क्लास वाज एन एकेडमी फॉर was our ऑलमोस्ट शहजाद में. इकबाल वहाँ से निकला है. शहजाद हमारा स्टॉक का प्रोग्राम करता जी जी आई रिमेम्बर. बाद में पल्स किया, जैस्मीन छोड़ के गई थी. जैस्मीन भी हमारे पास पीटीवी से. राना मुबशिर was in शाह, कराची, तो उनका कोई शहजाद, इशू था फैमिली का, तो जी, she came to शाहजेब, मैं, बतूल और बहुत सारे लोग हैं सर आप इंडस्ट्री में. जिलानी था, आदिल जिलानी सीएमबीसी में. और जो बहुत से अच्छे इकोनॉमी को समझने वाले ब्रेन्स वहाँ से निकले हैं. और Thinkers सैफान- नहीं है. सैफान जो आजकल जो उधर है, economy अब को तक में समझते हैं. वो- और वहाँ पे सबसे वो भी अच्छी वहाँ बात पे ये था. थी कि आपको काम करने देते थे. बड़े ओपन माइंडेड मैनेजमेंट. वो बस Institute था ना, लायक Basic सलमान Institute तसीर was an academy. साहब जो थे वो एक प्रोफेशनल आदमी थे. एक शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं और वापस आके हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे. ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन. ये प्रोग्राम ईद के हवाले से आपके लिए तरतीब दिया गया है. हमारे साथ मौजूद हैं अनीका, जमील साहब और बतूल. बतूल मुझे काइंडली ये बता दें लिबास के हवाले से. ज़ाहिर है कि ईद के मौके के ऊपर थोड़ा सजना, अपने आप को तैयार करना, सो आप किस तरह से मतलब करती हैं अपना दिन? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. ये कैसा सवाल है, इस पे हमारे घर में लड़ाई हो जाती है अच्छा. कि थोड़ा सा तैयार हो तो मेरी सास कहती हैं कि अब जेवर पहन लो. अच्छा. हाँ, और फिर अगर आपने बच्चों को अटेंड करना है तो वो जेवर उतारो. फिर किचन में जाओ मेहमानों के सामने फिर जेवर पहनो. तो वो दिस इज समथिंग आई कांट डू. तो मेरा एक ही गेटअप होता है कि यार बस थोड़े से
डिसेंट कपड़े पहन ली, ईद पे शलवार कमीज और बस हो गया, लेकिन बाकी चीज़ों पे मुझे तो बहुत कलर्स कौन से पसंद है आपको? आई थिंक ब्लैक इज़ माई कलर। हाँ, अच्छा। वरना अगर मैं अपने घर वालों की बात मानूँ तो और ज़्यादा अच्छा तैयार होना पड़ता है, लेकिन मैं कंफर्टेबल होती हूँ ब्लैक में। ब्लैक में? हाँ। तो ब्लैक जल्दी गंदा नहीं हो जाता? अच्छा, ये एक और नौयत का सवाल है, लेकिन मुझे ब्लैक पसंद है। हाँ जी फारूकी black and साहब, white. आपको ब्लू ज्यादा पसंद है लगता लग है। रहा होगा ना। हाँ, मुझे ब्लू पसंद है सबसे ज्यादा, वाइट एंड ब्लू। ब्लैक भी ठीक है बट लेकिन वाइट एंड ब्लू के सारे शेड्स। और बड़ा आपसे बड़ा लग रहा है कि आप खुश लिबास हैं माशाल्लाह। खुश लिबास के साथ साथ खुश मिजाज भी, खुश अच्छा, रहने ठीक है, की ये तो अच्छी बात है। खुश रहने की भी कोशिश करता हूँ। अच्छी बात। वो एक अलग बात है कि हमें बाज़ जगहों पे अपने आप को हमारा रिजर्व काम- शो करना हाँ। होता है, बट ये है कि मैं आई एम हैप्पी पर्सन ऑल होना द चाहिए, टाइम, ऑल होना द टाइम आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, और उसका अल्लाह ताला का लाख करम। अनकंफर्टेबल विद वेरी वेरी ब्राइट कलर्स, मतलब कुछ अच्छा। लोग होते हैं येलो कैरी कर लेते हैं, ऑरेंज भी। अच्छा, I don't get अच्छा, it. लेमनेड टाइप कलर जो है ये आपको गर्मियों में अच्छा लगता है, ब्राइट जैसे ब्राइट वाइट है ये अच्छा लगता है, पीच कलर की जो कुर्ता टाइप की शर्ट्स होती हैं वो गर्मियों में, ये मतलब सीजन पे होता है सही ना। और फिर सर्दियों में तो कपड़े हमेशा जो है ड्रेस कॉन्शियस तो मैं रहा हूँ जब से टीवी की वजह से भी होता है चूंकि हमारा काम ऐसे है, बट अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ सर। मैं जी हाँ। बैक इन 2009, वैसे तो 2007 में मैं समा में था, बट 2009 मुझे ऑफर करके ना आमिर ज़िया साहब ने कहा कि यार आपको हम प्रोडक्शन की ट्रेनिंग के लिए बॉर्न भेज रहे हैं जर्मनी। तो वहाँ चले गए, उसके बाद वापस आए तो उन्होंने कहा कि यार तुम में मुझे एक अच्छा प्रोड्यूसर नजर आता है, अभी 2 साल तुम स्क्रीन पे नहीं हो, प्रोडक्शन कराओ। वो मेरे लिए अच्छा, वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। फिर आप लोगों के पास हैं वो, लेकिन वो मेरा ख्याल है न्यूज़पेपर देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने सिखाया हमें। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ दैट वाज अ गुड टाइम। आई मीन के वो एक एकेडमी की तरह उन्होंने हमें वहाँ ट्रीट किया, बच्चों को, सबको। इसके बावजूद आई यूज्ड टू वेयर टाई सूट ऑल द टाइम। मैं पीसीआर में भी बैठा हूँ। अच्छा। मुझे कहते थे यार ये क्या है, किस तरह का बंदा। मुश्किल है, पता है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टरिस्टिक तो हर वक्त तैयार होना। तो वो अब भी वो मिलते हैं ना तो वो कहते हैं यार इस लड़के को मैंने इतना तंग किया है ना। मैंने कहा अब डेस्क पे बैठना है तो मैं बैठ जाता था, असाइनमेंट डेस्क पे बैठना है तो उधर बैठ जाता। प्रोडक्शन में आखिर में आके उन्होंने फिर एंकरिंग पे फिर एयर किया, उन्होंने कहा अब तुम जो है ना न्यूज़ सेंस डेवलप हो गई है। और वाकई ये हमारी फिर बाद में ग्रूमिंग में बड़ा काम आया है कि ये बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल मीडिया को अगर आप देखें, ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है, जी वो वहाँ पे आपको ग्रे हेयर्ड लोग जो है वो स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। जी। हमारे यहाँ थोड़ा सा एक जो है ना, इंडिया से ज्यादा हम मुतासिर Inspired हैं। हम लोग ग्लैमर को ज्यादा टीवी पे हम देखते हैं कि किसी का दिमाग कितना चल रहा है, वो देखते नहीं हैं कि देखते हम। जो बंदा बैठा हुआ किसी से सवाल कर रहा है वो उस कितना issue credible और उस mature issue- है, उस issue के ऊपर कितना grip है। उस सारे एनवायरनमेंट के बारे में कितना जानता है। एग्जैक्टली। जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो कल्चर डेवलप होते हुए it will अच्छा take a वही lot of भाई, time. एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल की हमारी जो पौध है ना, वैसे हम भी इसी पौध में से हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बट वो उनसे आप बात करें ना, मेरे पास 4 इंटर्न्स काम कर रही हैं बच्चियाँ, उनको आप अगर थोड़ा सा कहें कि नहीं आज आपने ये स्क्रिप्ट के 4 जुमले लिखने हैं, मजाल है वो आपको लिख के दिखा सकें। और ऊपर फिर उनमें ये एटीट्यूड भी होता है कि जैसे सब चीज़ें, सैलरी उनका राइट है, बाकी चीज़ें। और हमें आमिर ज़िया साहब या उस तरह के जो सीनियर्स थे, वो एक एरिया के अंदर, इवन ईद का, क्योंकि ईद से रिलेटेड प्रोग्राम है, ईद के दिन भी हमें अपनी परवाह नहीं होती थी, वो इतना हमसे काम लेते थे। तो वो चीज़ आज फिर वो आपका जब प्रोडक्ट डेवलप होता है तो यही तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ना। यार, लोगों में एरोगेंस, आज के लोग, आज ये के generation Z है, एरोगेंस acceptability ज्यादा नहीं है। है और सबमिसिव लोग नहीं होते, True. चीजों को सीखना नहीं चाहते। पहले लिबास पे बात, फिर प्रोफेशन पे बात करेंगे। मेरा फेवरेट कलर आप पूछना चाह रहे हैं? आई डोंट, मेरे अनइंटेंशनली मेरा गो टू कलर ब्लैक होता है। हाँ, और Unintentional। हाँ, अच्छा, ऐसा मजे की हो बात जाता ये है। है, वो आसान ब्लैक के कलर है। दरमियान आप जो है ना बहुत फंसे हुए हैं। आसान कलर है मेंटेन करना। अभी मैंने इनके नंबर पे जो डीपी देखी है ना, उसमें भी ब्लैक पहना हुआ है, और ये साबित कर दिया इन्होंने। और ऐसा हो जाता है, मतलब एकदम से हाँ। अपने वार्डरोब खोलेंगे तो बहुत उसमें go-to ब्लैक colour ही है। आएगा। इसलिए क्योंकि आसान है, उसके अंदर मोनोक्रोम में जाना बहुत आसान है। सेकेंडली आपने किसी भी ओकेजन पे जाना है तो वो कलर सूट कर जाता है, आप उसको ड्रेस अप ड्रेस डाउन कर सकते हैं। आपने 2-3 ओकेजन्स पे जाना है तो ज्वेलरी वेयर कर लें, ज्वेलरी और उतार किसी दें को ये कहने की चल जरूरत भी नहीं पड़ती कि आज काला जोरा पा साड़ी फरमाइश थे। हाँ, किसी तुसी को कहने की already पाया है। जरूरत ऑलरेडी पाया है।
देखिए आपके शो में जान डाल दी ना इन सब ने। बिल्कुल माशाल्लाह, दैट्स व्हाई वी इनवाइटेड, यू नो। मतलब मेरे जैसा शख्स जो है वो शायद इसके से What do you mean by that? Explain करें। जो ना प्रोग्राम जो बोर करने होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। परेशान होता हूँ कि मैंने सवाल क्या करना है। exactly। हालांकि मैं बाद में पता चलता है कि कर गया हूँ मैं, मतलब कर गुजरा हूँ। और बिल्कुल मेरे साथ And ये that- होता that's- है। Experience हो गया, आपको इस बारे में फिक्र करने की जरूरत That's नहीं है। how a seasoned ये journalist जो should do. कलर्स के क्वेश्चन करना, ये सब, ये बनना और समझना, अभी आपको भी फंसा दिया ना हमने, फंसा दिया और फंसा दिया। अच्छा बात करें, ये सबसे ज्यादा तो नहीं। अब ये 12 साल हो गए हैं कि करंट अफेयर्स करते हुए, लेकिन अभी ईद का प्रोग्राम करते हुए मुझे इतना अननेचुरल लगता है और मुझे अपने आप को बहुत पुश करने, आई गेट इट दिस एंटी पेरिस्टालिक मूवमेंट इन मी कि यार आप ईद के दिन क्या करते हैं, और ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है, पता नहीं हमारा फोर्टे नहीं है। मार जी जी प्लीज डिस्टर्ब कर प्लीज। अब आप, मैं तो वही बता रही हूँ, गो टू कलर ब्लैक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा कोई मैं कोई कलर ना पहनूं। ठीक। मुझे बाकी सारे रंग भी अच्छे लगते हैं, दे लुक नाइस ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, लेकिन अगर कहीं मुझे सेफ ड्रेसिंग करनी हो तो ब्लैक। दैट्स ग्रेट। ये मुझे बताएं कि मेहमानों से परेशान तो नहीं होते लोग, मतलब मेहमान मुझसे परेशान हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि अक्सर जो है ख़वातीन जो है ना, उनको सबसे ज़्यादा जो ईद इस तरह के ओकेजन जो होते हैं जब लोगों ने आना होता है, या फॉर दैट मैटर इवन आपने किसी से मिलने के लिए जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, यार क्या करेंगे, अब लोग आ रहे हैं, इनको ये इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मनी, मेरे साथ बट जरा बिकॉज अलग ऑफ द है। हैसल। मेरे साथ जरा अलग है, मुझे हाँ, छोटी देगचियों में खाने पकाने की बजाय बड़ी देगचियों में खाने पसंद है, तो लाइक बड़ी क्वांटिटी में फ्रीज कर दूं बाद में, लेकिन ये कि बड़ी क्वांटिटी। क्योंकि इसमें सोशलाइजेशन का एलिमेंट, वो जो आप वाली बात है जी, ना, जी। कि आप लोगों से कैसे डील करते हो, फिर आप उसको एंजॉय करते हैं या नहीं करते। कुछ लोग होते हैं वही- इंट्रोवर्टेड होते हैं, मैं आपको मजे की बात इंट्रोसेंट्रिक होते हैं, दे डोंट वांट टू मीट द पीपल। अच्छा, मैं यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर अकेला रहता हूँ। आई हैव ए वेरी गुड शेफ, वेरी गुड ड्राइवर, घर में मेड्स अलग हैं, बट यकीन करें कि मेरी एक्टिविटी क्या है, 13 किलोमीटर अ डे रनिंग, उसके बाद स्विमिंग के लिए जाना है, ऑफिस में मेरे हफ्ते में 2 दिन शोज हैं वो करने हैं, बाकी मैं घर पे ही रहता हूँ। मुझे बाहर निकलने में बहुत आती है, आई मीन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बाहर बैठूंगा, कहीं जाके खाना खाऊंगा। कुछ लोगों की होती है, मैं सोशलाइज करता ही नहीं। अगर किसी ने मिलने भी आना है, वंस इन अ ब्लू मून आपके घर पे चक्कर लगा लेगा, बस दैट्स इट, दिस इज लाइफ। कुछ लोग होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बाहर जाके बैठते हैं, वो कोसार में भी बैठते हैं, और कई लोगों ने गिला भी किया कि यार आप हमारे यहाँ तो अब कोसार जो है बैठना बड़ा जरूरी हो जाता है बाज़ दफा, हालांकि आई डोंट गो, नहीं, हमारे घर पे ही आ जाते हैं कोसार वाले घर पे ही आ जाते हैं, उधर वाले भी घर पे ही आ जाते हैं, यानी कि घर में भी सुकून नहीं है। उधर वाले भी घर पे ही आ जाते हैं। सो सोशलाइजेशन, यू लाइक आई डू लाइक सोशलाइजेशन, मुझे पसंद है, मुझे लोगों से मिलना, लोगों से सीखना, लोगों कुछ वो मुझसे सीखें, कुछ मैं उनसे सीखूं, प्लस मुझे पॉजिटिव वाइब्स स्प्रेड करना बहुत पसंद है। आई डोंट लाइक नेगेटिविटी अराउंड मी, तो मैं चूजी हूँ। वो जो साजिशी ख़वातीन जो होती हैं वो तो मतलब ऐसा मैंने आपको बताया मैं थोड़ा मलंग टाइप। क्लियर कर दें, साजिशी या मुदाखलत करने वाली? नहीं, हाँ वाकई ये नहीं, इस वक्त मैं ये बात नहीं कर रही। पहली बात ये है कि इसको एक्सप्लेन कौन करेगा। हो गए जी, ये मुदाखलत और साजिश क्या है? ये जो सियासत है वो आ गई है। देख लें। मुदाखलत को वैसे मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम। नहीं, ये उसको ख़वातीन के कॉन्टेक्स्ट में करें ना, ये क्या बात हुई? आप जो मतलब मेहमान आते हैं तो डू यू फील कंफर्टेबल और यू डोंट फील कंफर्टेबल? मुझे लगता है मेरा जो ब्रॉटअप है, जिस माहौल में हुआ था, फौजी बैकग्राउंड, उसमें तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की वजह से मुझे बहुत चेंज आया है। जैसे सोशलाइज करना, I've become a good listener. I believe I've become a good listener. और सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है, ये क्वालिटी, और ये बहुत अच्छी बात है अगर रनीका में पहले से है, क्योंकि सोशलाइज करने से आप तरह तरह की चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, और जब आपके पास वैरायटी होती है तो आप उसमें से एक बेहतर ओपिनियन पिक कर सकते हैं। तो वो वाला नहीं कि सोशल एनिमल वाली जो सोशियोलॉजी की थ्योरी है कि हर वक्त आप अपना वक्त सिर्फ लोगों में गुजारें, अकेला रहना, अपने आप को ग्रूम करना भी, हाँ बिल्कुल, लेकिन और जो एग्जैक्टली, और जो ईद का इवेंट होता है, देखिए उसमें भी अगर आप अपने रिश्तेदारों बहन भाइयों से नहीं मिलने चाहते, भाई 2-3 चीजें इसमें हैं। अगर आप ईद पे भी किसी से मिलना, देखें सोशलाइजिंग, जैसे आपकी अपनी इंडस्ट्री के लोग हैं ना, मेरे साथ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब भी मैं कोई 8-10 इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ बैठता हूँ, किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी का कुछ ना कुछ माइंड करने वाली बात आ जाती है कि यार वो फलां ने इस बात पे माइंड कर लिया, फलां ने इस बात पे, और कितने को आप फिर मनाते फिरेंगे।
تو یہ بیک ان 2014-15 اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کر لیا, اس خوف سے آپ نہیں ملتے لوگ؟ اس خوف سے بھی نہیں, اس وجہ سے ہے کہ میں نے دوست بنانے ہیں, میں نے دشمن نہیں بنانے, تو اس لیے جو ہے نا I don't want to sit with them. مطلب جب کبھی ضرورت پڑے پروفیشنلی تو بیٹھ جاؤ, otherwise not. As far as your family and friends are concerned, ان سے تو آپ ملتے ہیں, وہ آپ طریقہ ہوتا ہے آپ کا, آپ کی لائف سٹائل, آپ اپنے اسٹائل سے اس کا میرے پاس ایک فارمولا ہے, ایک اسکالر تھے, ان کا نام ہمیں ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو وقت ہوتا ہے نا وہ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. اگر اس وقت میں جوس پی رہی ہوں تو مجھے پوری توجہ سے جوس پینا, پانی تو پی لیں, اور پھر اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہوں تو مجھے پورے فوکس سے آپ کا جواب دینا ہے. اگر میری آدھی توجہ جوس پینے پہ اور آدھے آپ کا جواب دینے میں تو دس از ناٹ دا وے اٹ شوڈ بی. تو آپ جو بھی کریں آپ کو وہ پوری توجہ سے کرنا چاہیے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا ٹائم نہیں تھا یا تھوڑا سا ٹائم ادھر دے دیا, وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ ہی نہیں کر پاتے. جو چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے, اگر آپ اس کی روح کے مطابق وہ نہیں کرتے تو دیر از نو فن ان اٹ. عید ہو یا نماز ہو یا کوئی پارٹی ہو یا کوئی ڈبیٹ ہو یا کوئی پروگرام ہو, اگر آپ اس میں اس کی ایسنس نہیں ڈالتے, دیر از نو لائف ان اٹ. بالکل صحیح ہے. ناظرین, بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے. انسپیکٹڈلی میں تو پروگرام کے دوران بھی بات ہوئی ہے کہ کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کے پروگرام کو کیسے کمپلیٹ کیا جائے گا, بٹ آئی تھنک کہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے. ایک اور شارٹ بریک کوئکلی لے لیتے ہیں اور پھر تھوڑی پروفیشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیسے مہندی پہ, کیونکہ سوال بتانے تو سوچا سوال بتا دوں. ٹھیک ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, یہ پروگرام عید کے حوالے سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل فاروقی صاحب, بطول راجپوت اور انیکا نثار صاحبہ. انیکا صاحبہ, یہ مجھے بتائیں کہ ہمارا جو پروفیشن ہے, ہاؤ یو کیم ٹو میڈیا, مطلب یو کوڈ ہیو گون ٹو اینی ادر پروفیشن. I was in another profession. I didn't choose journalism. Journalism chose me. میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھی. کیلکولیٹرز اور اس ٹائپ کی چیزوں پہ کام کرنا مجھے لایا اس فیلڈ میں, اسی چکر میں گیا تھا کہ آپ فائنانس کا شو کریں گی. لیکن اس کے بعد بزنس پلس, دس واز بیک ان 2010 and all. پھر میں اس فیلڈ میں آئی, اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ چلو پڑھ ہی لیتے ہیں اس بارے میں. پھر میں نے فیلوشپ کی جرنلزم میں US سے. اس کے بعد پھر میں اسی فیلڈ کی ہو کے رہ گئی ہوں کیونکہ یہ ایک ایڈکٹیو فیلڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ آج کوئی do you enjoy, do you regret, I love it, do you think کہ مجھے شاید میں نہیں, I love it, لیکن صرف ایک چیز جو اب ایز اے مدر تھوڑی کھٹکتی ہے کبھی کبھی, وہ یہ کہ یہ والا پروفیشن نہیں ہے, لائف سٹائل ہے. آپ کسی ٹائم پر بھی لیگ نہیں کر سکتے, آپ کسی ٹائم ایگزیکٹلی. تو آپ کی پوری زندگی صبح شام رات جو بھی ہے وہ اس پروفیشن کے لیے. And this profession is not 9 to 5. No, it's not. Absolutely not. Absolutely not. تو اس لیے یہ چیز, لیکن میں پھر بھی انجوائے کرتی ہوں. مجھے پروفیشن بہت اچھا لگتا ہے, مجھے محنت کرنا, میں خود بھی تھوڑی ورکہولک ہوں, تو مجھے بہت محنت کرنا اور چیزیں خبریں نکالنا اندر سے, کہاں سے کیا چیز چل رہی ہے, سورسز کے تھرو اینڈ آل, سورسز کو اسٹرینتھن کرنا. آئی ایکچولی تھورلی انجوائے اٹ. انکویزیٹو بندہ بن جاتا ہے, وہی اس فیلڈ میں چل سکتا ہے. ادروائز آپ بالکل چل ہوں تو پھر آپ اس فیلڈ میں نہیں چل سکتے. بالکل صحیح ہے. جی بھائی جمیل صاحب تسی دس دیو پھر. جی میں بالکل بتاتا ہوں آپ کو. بننا مجھے ڈاکٹر تھا, سچی بات ہے. اچھا. اور میری جو انیشیل ایجوکیشن تھی اس میں بایولوجی اور کیمسٹری کا اپنا ایک رول تھا, اور وہ ہم نے بڑے اچھے مارکس کے ساتھ, مطلب میٹریکولیشن اینڈ دین انٹر, میں ٹاپر تھا اپنے علاقے کا. تو بٹ دا تھنگ از کہ پیرنٹس میرے دونوں نہیں تھے, اور ایکسیڈنٹلی جب میں کراچی میں گیا, اینڈ میں بھی انسٹیٹیوٹ آف چارٹر اکاؤنٹس آف پاکستان میں تھا, SBS میں اس وقت پڑھ رہا تھا. تو بہت سارے ہمارے دوست تھے, میں کچھ ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا بچوں کو, انہوں نے کہا کہ سر آپ میڈیا کی طرف کیوں نہیں جاتے. یہ دیٹ واز بیک ان 2005. تو میں نے کہا یار ہماری تو فیملی ایسی ہے. پرانے تو آپ نہیں لگتے. نہیں
ये बहुत आपने अंदर की बात कर डाली पुरानी। 71 की जंग से हैं। नहीं मैंने उससे बुरा तो 71 की कहा जंग से नहीं है, पहले मैंने क्या तो है? पुराना कहा है। अच्छा बात सुने, डोंट लुक दैट पुराना। नहीं कुछ लोग जल्दी भी आ जाते हैं कुछ लोग जल्दी में ज्यादा तजुर्बाकार हो जाते हैं। अच्छा ये आप वैसे ही कह रहे हैं, आप सही शो नहीं होता, झुकते आम में फैसलाबाद नहीं नहीं कहाँ पे, मैंने तो अभी कुछ अच्छा कहा वो ही बात नहीं वहीं है। रह गई ना। जी जी सुनिए, तो मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया अपने एक अंकल से, गुलाम मदन कंपनी में उनका एक चैनल लॉन्च हो रहा था तो रोशनी टीवी के नाम से। तो उसने कहा सर आप वहाँ पे हमारे काफी सीनियर पीटीवी के अली रजा गोवा साहब थे हाँ। उसके ओनर, और उस वक्त थे मासूम उस्मानी साहब उनकी जो वफात अल्लाह पा ताला गए। उनके जी, वो जी, हमारे जी। साथ पीटीवी में रहे। जी 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 ही वाज वेरी ग्रेट पर्सन। सर उन्होंने मुझे वहाँ भेजा एंड रिकमेंडेशन थी, तो खैर ऑडिशन सारे हुए एंड थोड़ा देखने में अच्छा था, डिबेटर था, तो चांस मिल गया एंड साथ में स्टडी भी अपनी ग्रेजुएशन भी मैं साथ साथ करता रहा। तो उसके बाद फिर फैमिली मेरी बड़ी रिलीजियस फैमिली थी, आई मीन के मेरे पेरेंट्स दोनों तो जो थे। अभी आप क्या कोई मतलब पटरी से उतर गए? नहीं मैं पटरी से तो ये कहने की क्या जरूरत है? अच्छा आगे सुन ले, आगे जुमला मुझे कंप्लीट करने दे, जुमला मुझे कंप्लीट करने दे। मैं बता रही हूँ आप पे एक फैसलाबाजी शुरू अच्छा है। जिस इलाके से मैं हूँ उसका नाम है कोट्समावा, वहां पर ना टीवी पर जाना भी ना अच्छा जुर्म समझा जाता है। ये नहीं पता होता कि टीवी कौन सा है, आई मीन न्यूज मीडिया है या एंटरटेनमेंट मीडिया है। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था और क्वेश्चन ये होता था कि यार आप ये तो कर रहे हैं, न्यूज एंकरिंग तो कर रहे हैं, साथ में जॉब क्या करते हैं? हम लोग हाँ। ये समझ ये सवाल करते थे। उससे क्या करते क्या है? अच्छा Exactly, और हाँ। हमारे लिए बड़ा मुंडा करदा की ये हाँ नहीं ये टीवी पे तो आता है, हाँ। नौकरी की करता है, नौकरी की करता और हमारे लिए बड़ा अजाब था। और उस वक्त जब आप स्टार्ट में मतलब क्या सैलरी 20-25 हज़ार सैलरी लेते हो, तो उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है आप लोगों को जवाब देना। और फिर चैनल्स आ रहे हो और बंद हो रहे हो, तो हमने अपनी रोशनी टीवी बंद हुआ, सन टीवी बंद हुआ, बहुत सारे चैनल्स हमारे सामने आए और फिर बंद होते गए। और फिर हम ऐसे थे कुछ हमारे बड़ा दोस्तों का आपस हम तकरीबन हम सब लोगों ने ज्यादा ने बिजनेस प्लस से स्टार्ट किया, आज बिजनेस प्लस नहीं है जी। वक्त टीवी वाज वेरी गुड, वक्त was वेरी an गुड amazing चैनल। वहाँ से कितने लोग निकले हैं It was आज an amazing place. मुख्तलिफ चैनल्स मैं में आपको हैं। मजे की बात बताऊं, एक चैनल में काम कर रहे होते थे ना 6-8 लोग हाँ। कराची में, अब चैनल बंद हुआ तो नेक्स्ट चैनल में भी वही सारे सामने खड़े हैं। सही बात। अच्छा वो चैनल बंद हुआ तो अगले में गए, वो एक्सप्रेस का एक टाइम्स आया था, टाइम्स के नाम से, जी, जी, एक्सप्रेस जी। टीवी का टाइम्स के नाम से। अब उसमें गया 3 महीने बाद वो बंद हो गया, तो सारे ना एक दूसरे की तरफ देख रहे यार अगली दफा एक ही चैनल में तीनों ने नहीं आना, कोई ना कोई पिनौती है। यही जुमले एज इट इज होते थे। तो बड़े मुश्किल टाइम से हम गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन आई थिंक अभी भी मीडिया जो है जाहिर है उसके ऊपर लेकिन सर टीवी जर्नलिज्म इज अ चैलेंज लाइफस्टाइल है। फाइनेंशियली देयर इज अ लॉट ऑफ चैलेंज। कुछ अच्छे इदारे हैं, media देयर वेलफेयर, और वो सारी कसर निकल रही है। जनरेशन भी हो ना, मैं देखें जब तक जनरेट नहीं करेगी कोई कंपनी कोई चैनल, वो अब फिर आगे कैसे उसको डिजिटल ओटीटी और यूट्यूब और वो सारी चीजें आपके कंपटीशन में आ गई हैं। Exactly, लेकिन exactly. अभी भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया जो है उसकी एक अपनी ऑथेंटिसिटी है, जी हाँ। बिकॉज हम रेगुलेटेड है। अभी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और बाकी सारे झूठ प्लेटफॉर्म्स बोला को जाता है। आने में और उसके बाद ऑथेंटिक होने में टाइम उसकी लगेगा। वजह से काफी ज्यादा मीडिया के अंदर प्रॉब्लम एक we are चीज़ सर मैं- facing, इस वक्त जो प्रॉब्लम चीज़ आ मैं रहे तो- ज़ुक का हैं शिकार। मुआशरे के एतबार से, सलामती के एतबार से और बर्दाश्त के एतबार से, आज लोगों के अंदर, पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर, पॉलिटिशियंस के अंदर, अदम मुआशरे बर्दाश्त के है। अंदर अदम बर्दाश्त की बुनियादी वजह ये है। सर ये एक डिजिटल मीडिया है। एक चीज मैं जरूर और कहूंगा जब कि- तक इसको आप रेगुलेट मैं नहीं करेंगे अगर तब इजाज़त तक हो- मुश्किल है। मुझे मेरे अम्मा डॉक्टर बनाना चाहते थे गन पॉइंट पे, ये हर बंदे ने डॉक्टर ही क्यों बनना और होता है? क्योंकि मेरे अब्बा फौज में थे और मेरी फैमिली में ज्यादातर लोग फौज में थे, हैं डॉक्टर्स हैं, तो वो एक सेट हुआ था स्टैंडर्ड के ठीक। या डॉक्टर बनना है या फौज में जाना है। तो मुझे दोनों ही नहीं करना था, मेरा टेम्परामेंट ऐसा नहीं था, मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करती थी, गलती भी अपनी मर्जी से ही करनी है। तो लेकिन मैंने साइंसेस पढ़ी, क्योंकि उस वक्त आप कहाँ डिसीजन ले सकते हैं जब आप 15-16 साल के होते हैं। तो साइंसेस के पढ़ाई और बहुत डांट के मुझे मेडिकल कॉलेज के इम्तिहान में भेजा, तो वहाँ पे मेरे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन कोटा सिस्टम की वजह से आई कुड नॉट गेट द एडमिशन। मतलब मेरे 91 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, लेकिन आई कुड नॉट गेट द एडमिशन क्योंकि मैं फेडरल बोर्ड से थी और 40 मार्क्स तो आपके वैसे ही कट जाते हैं। तो 91 से ऑल ऑफ अ सडन ना 40, तो मैंने कहा चलो शुक्र है एडमिशन नहीं हुआ। और फिर मेरी फैमिली पॉजिटिव भी थी, या तो कराची के मेडिकल कॉलेज में जाना है, यहाँ पे भी नहीं जाना, तो बहुत ज़्यादा दबाव तो नहीं था, बहुत पैम्पर्ड थी मैं शायद। तो बड़ा मैंने क्या पढ़ना है उससे बहुत इंटरफेरेंस थी मेरी फैमिली की, तो वो मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग था।
تو میں نے کہا بھائی مجھے یہ کرنا ہی نہیں ہے. مجھے بہت ڈانٹ ڈپٹ کے کراچی یونیورسٹی میں ایک سائنسز کے ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے بھیجا, میں سارے جواب غلط کر کے آ گئی سارے. میں نے کہا یہ اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ فیل ہو جاؤ. ہاں یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے نا. تو پتہ نہیں وہ کیا سبجیکٹ تھا مجھے یاد نہیں. تو میں نے اپنی بہن کو کے بتایا, ان کی بہت جلدی تھی مجھ پہ. میں نے کہا یار مجھے بہت ڈانٹ پڑی, میں سب جواب غلط کر کے آ گئی اور ایڈمیشن تو میرا نہیں ہوگا. تو اب واقعی ایڈمیشن نہیں ہوا. تو پھر آئی سیٹ ود مائی پیرنٹس, اور میری ڈیڈی بہت انڈرسٹینڈنگ تھے, اب بھی ہیں, لیکن میری مدر اور میری بہنیں وہ لوگ کہتی تھی کہ بھائی ڈاکٹر بنو. اور میرا ٹیمپر میں نے کہا بھائی اگر کسی کو آپریشن کرنا ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ, تو اس بیچارے پیشنٹ کا کیا قصور ہے, میرا تو ایسا ٹیمپرمنٹ. تو پھر میں آئی سیٹ ود مائی ڈیڈی اینڈ جو برفت تھے کراچی یونیورسٹی میں, خیال ابھی بھی میس کمیونیکیشن کے وہ ہیڈ ہیں یا چیئرمین ہیں, تو وہ میری ڈیڈی کے دوست تھے. انہوں نے کہا کہ جو میری بیٹی ہے وہ مجھے بہت تنگ کر رہی ہے, وہ سبجیکٹ وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتی. تو انہوں نے میری شخصیت کا جب سمجھایا سر برفت کو, تو انہوں نے کہا وہ شی از میڈ فار میس کمیونیکیشن, اس کو میس کمیونیکیشن کرواؤ. پھر میری ڈیڈی نے مجھے بتایا کہ یہ تمہارے پاس آپشنز ہیں, وڈ یو لائک ٹو اسٹڈی دس. تو میں نے کہا دس از دا وے آئی ایم. تو پھر میرے ابا نے مجھے بیسکلی ہی اسٹوڈ ود می کہ جو تمہاری پرسنالٹی ہے تم وہی پڑھو. اور پھر میس کمیونیکیشن میں بھی آپ کے پاس بہت آپشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے ریڈیو کرنا ہے, اخبار کرنا ہے, اخبار میں جانا ہے, پھر ٹی وی کے اندر یو وانٹ ٹو گو ٹو پروڈکشن. ہاں ایگزیکٹلی. تو پھر آئی آپٹڈ فار ٹی وی جرنلزم. یس. تو اس طرح سے آئی فاؤنڈ مائی پرسنالٹی ان ون آف دا پروفیشنز. زبردستی. ٹائم کا کیا کریں, اب کھینچ کے آگے لے جائیں؟ نہیں ایبسولوٹلی ناٹ. نہیں, ایبسلیوٹلی یس. اچھا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. نیکا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. جمیل بھائی آپ کا شکریہ, آپ بزی آدمی ہیں. تھینک یو فار کمنگ. سر لائف اسٹائل آپ کا جرنلزم لائف اسٹائل ہو چکا ہے ہمارا. اور آئی تھنک کہ یہ پروگرام تو میں نے کر ہی لیا. آئی تھنک اچھا خاصا کر لیا, ماڈسٹ. بہت شکریہ تینوں کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.